हाँ जी, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਜੇਈ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਥਿਓਰੀ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਲੈਟ ਅਸ ਬਿਗਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਦਿਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਟੈਂਜੈਂਟ ਟੂ ਦਿਸ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ। ਤੋ ਇੰਨਾ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ y = 2x, ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਹੈ 2। ਤੋ m ਸਲੋਪ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ, ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਲੀ m ਸਲੋਪ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਆ ਵਾਲੇ a² m/c ਐਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਅਰ c² ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a² m² - b²। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੈ 2 ਸਲੋਪ ਦਾ ਇਸ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਐਟ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ x1, y1, ਦੈਨ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਪੁੱਤਰ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ m ਸਲੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, a² ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, b² ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਆ ਵੀ ਨੋਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ x1, ਦਿਸ ਇਜ਼ y1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਕੁਇਕਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ x1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਸਲੋਪ ਦੇ ਨਾ ਦੋ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਆਉਣੇ ਆ। ਬਟ ਸਕੁਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਲੈਟ ਅਸ ਗੈਟ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ c² ਕੱਢ ਲਈਏ। c² ਕਿੰਨਾ ਹੈ, a² m² which is nothing but 4 minus b²। so this is 16 minus 2 14, c ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ √14। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰੱਖੀਏ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ x1 ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀ y1। ਸੋ x1 is plus minus a² is 4 and m is 2 by c। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ y1 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ b² by c। ਬਸ ਹੁਣ ਜੋ ਆ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਕੁਐਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 64 by 14 and plus 5 time y1² that is 4 by 14। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਬਸ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 84 by 14 and that is equal to 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਲੋਪ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੈਟ ਦ ਪੁਆਇੰਟ P 3,3 is on this hyperbola। ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ 3,3 P ਪੁਆਇੰਟ। if the normal to the point P intersect the x-axis। so ਇੱਥੇ normal ਜਿਹੜਾ ਹੈ that intersects the x-axis at the point 9, 0 and E is the eccentricity, find this। A ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ E ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ E ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। 3,3 ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ 9, 0 ਚੋਂ, ਤੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉਹ 9, 0 ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ try to write down the equation of normal at 3,3। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ if you guys remember x minus x1 by x1 into a² and y minus y1 by y1 into minus b²। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ at the point x1, y1। so let us quickly write x minus 3 by 3 into a²। ठीक है, because a² b² ਤੇ unknown है and y minus 3 by 3 and minus b²। ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ 9, 0। ਤਾਂ x9 ਤੇ y0 ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਈਏ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9 ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0। ਸੋ y0 and x9। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟ ਅਸ ਰਾਈਟ 9 ਹੇਅਰ।
हाँ जी की आ गया सो दिस इज 6 3 ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ प्लस ਤੇ ਆ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ 2a² equal to b²। ठीक है एंड यू ऑलरेडी नो e² is equal to 1 plus b² by a²। तो इथों b² by a² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਰਫ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ देयरफॉर e² equal to 3 तो e² 3 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ a²। ठीक है ਤੇ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਇੱਥੇ 2। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨਾ एक चीज देखो ने क्या ना कि 3,3 पॉइंट ਤੇ ਨਾਰਮਲ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ठीक है ना तो ਇੱਥੇ 3 ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦੋ ਤਾਂ 9 by a² minus 9 by b² equal to 1 ਰਾਈਟ। तो ਇੱਥੋਂ b² ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ 2a²। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੱਥੋਂ a² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ देयरफॉर 1 by a²। हाँ जी सॉल्व कर लीजिए तो 1 by a² and times 9 by 2 is equal to 1 so therefore a² is equal to 9 by 2। so a² 9 by 2 ਤੇ e² 3 a² 9 by 2 e² 3 ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ठीक है बेटे अच्छा क्वेश्चन कहता पुत्र कि if this line is tangent to this hyperbola ਆ ਲਾਈਨ ਇਸ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ and ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ if this line passes through the point of intersection of the nearest directrix and x-axis। okay let us see पहला लाइन रफली प्लॉट कर लईए। हाँ जी 2x plus y equal to 1 हाँ जी x0 y1 and y0 x half। ठीक है तो ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਤੇ ਇਹ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਿਸ ਲਾਈਨ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਨੀਅਰੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ। तो क्लियरली एक डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा एक ਇੱਥੇ ਹੋਗਾ ਤੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਇਧਰ ਵਾਲਾ ਆਣਾ। ठीक है दिस इज दो ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣੀ ਨੇ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ एक ਇੱਥੇ तो नीयरेस्ट इज दिस वन। तो ये लाइन किचो पास करती है दिस passes through the point of intersection of nearest directrix with the x-axis। so directrix ਤੇ x-axis so let us plot so this is the directrix ਆ x-axis ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ directrix ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਤਰ x equal to ਇਧਰ ਵਾਲੇ ਦੀ plus a by और आ तुसी ऑलरेडी कैलकुलेट किया आ वाला पॉइंट कितना सीगा y0 करके x हाफ तो दिस इज आ लाइन आ गई x इक्वल टू हाफ या बेसिकली इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया हाफ तो एदा a बाई तो a बाई e इक्वल टू हाफ तुहाडे को एक इक्वेशन आ गई a ते e च। ठीक है सपोज बड़ी सिंपल फिर पूछदा की है फाइंड दी सेंट्रिसिटी ऑफ दी हाइपरबोला तो नो प्रॉब्लम एक इक्वेशन तुहाडे को इथों आ चुकी है। ठीक है सेकंड you चलो already know that e square is 1 plus b square by a square। थर्ड ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ that is minus 2x plus 1 ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ this is y equal to mx plus under root of ਹਾਂਜੀ a square m square minus b square। तो m ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ -2 ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ c ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ so m is -2 c square is which is nothing but 1 a square m square minus b square। ठीक है ए बी च दूजी क्वेश्चन आ गई इथों सो ऑलरेडी ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਅਗਰ ਟੈਂਜੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ तो क्लियरली ਇਹ c ਤੋਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ a and b। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ 4a² minus b² equal to 1 ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਪੁੱਤਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ e ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ठीक है सो लेट मी जस्ट हेल्प आउट इथों तुहाडे को ये आ गया पुत्र e by 2। ठीक है सो बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर इसेंसिटी तो अगर b² ਤੇ a² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਈਏ e ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ a ਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ e ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਨਾ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ तो b² ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਓ तो व्हाट इज b²? 4a² minus 1 and a is nothing but e by 2 so that is e² by 4। सो गल पुत्र खत्म हो गई तो इस इक्वेशन के अंदर
बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ ई की टर्म च प्लग कर दो। ई स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर विच इज नथिंग बट दिस डिवाइड बाय ए स्क्वायर, एदा स्क्वायर कर दो ई स्क्वायर बाय 4। सो इनू इक्वेशन बन गई थोड़े को देखो ई स्क्वायर नू वास्ते सॉल्व कर लो, ई स्क्वायर नू टी मन के यू कैन गेट इट्स वैल्यू। इज इट क्लियर? ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके आ क्वेश्चन कर दे, बड़ी बार बेटे रिपीट हो चुका है, पहला भी हो जा चुका है, 12th च भी आया तो रिसेंटली भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो लेट मी सॉल्व वन ऑफ दैम राइट। अच्छा क्वेश्चन है कहता है कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस हाइपरबोला, ठीक है। अज भी यहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन कुछ किए है, जो सी की वैल्यू आप लेने प्लस लैनी कि माइनस लैनी वो भी मैं इस क्वेश्चन के थ्रू क्लीयर कर देना। कहते टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस हाइपरबोला विच इज पैरेलल टू दिस स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 1। इस लाइन के पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए तो जिथे टच करते हैं पॉइंट ऑफ कंटैक्ट चाहिए। तो इदा के क्वेश्चन ना पहली चीज़ तुम देखा करो कि टेंजेंट की स्लोप की है। तो लाइन की स्लोप है पुत्र 2, तो जे तो स्लोप पॉजिटिव होवे, हुण आ गल ख्याल नाल समझो, पॉजिटिव स्लोप के टेंजेंट जिहड़े आ वो टच करोगे उन्होंने एक तो फस्ट क्वाड्रेंट च ते दूजा टच करूगा उन्होंने पैरेलल उहदे थर्ड क्वाड्रेंट च। तो वंस अगेन अगर तो स्लोप पॉजिटिव आ तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जिहड़ा होगा एक होगा पहले क्वाड्रेंट च, एक होगा तीजे च। तो मतलब जब तुसीं वो कैलकुलेट करोगे पॉइंट ऑफ कंटैक्ट तो दोनों का एक्स ते वाई कोआर्डिनेट पॉजिटिव होगा ये वास्ते, तो ये वास्ते ऑब्वियसली दोनों का एक्स ते वाई कोआर्डिनेट नैगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो कोई थोड़ा एम्बीग्यूटी नहीं रहेगी कि कितना करना है, तो ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव आ जाने, तो आ वाला पॉइंट ऑफ कंटैक्ट आ जाऊगा। और अगर एक्स ते वाई दोनों नैगेटिव आप लेने तो थोड़े को आ जाऊगा। और अगर स्लोप मान लो नैगेटिव होंगी, हालांकि इस केस से +2 है, तो मतलब इस क्वेश्चन च दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो या तो दोनों पॉजिटिव होने या दोनों नैगेटिव होने। तो मतलब एक पॉजिटिव एक नैगेटिव आ वैसे नहीं होना तो आ भी नहीं होना, तो लाइक दीज कैन बी राइट। तो अगर स्लोप नैगेटिव हो मतलब इदा स्लोप हो तो वो किस टच करेंगे, एक करूगा थोड़ा तीजे च ते एक करेगा चौथे च, बैग यू पार्डन दूजे ते चौथे च। तो दूजे च चौथे च मतलब एक एक्स नैगेटिव होगा वाई पॉजिटिव और ये एक्स पॉजिटिव तो वाई नैगेटिव, ठीक है। तो पहला कम की हो गया जिदा मैं समझाया कि स्लोप चेक कर लो, एम चेक कर लो एम पॉजिटिव है कि नैगेटिव है, तो वो करस्पोंडिंग तुहानू पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के क्वाड्रेंट्स पता लग जाओगे, ठीक है। फिर होर भी ईजी हो जाएगा प्लस माइनस नू जज करना। चलो ठीक है, हुण तुहानू पता है कि स्लोप अगर पता हो एम, ठीक है, ए स्क्वायर तुहानू पता है 9, बी स्क्वायर इज 4, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे हाँ जी की होंगे सी पुत्र प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी एंड प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय सी। और सी तुसी पॉजिटिव ले लिया करो, सी इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो लेट अस गेट दिस अंडर रूट ऑफ हाँ जी ए स्क्वायर 9 एम स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर भी 4 या 36 तो आ थोड़े को आ गया रूट ऑफ 32। सो दैट इज नथिंग बट टू 4 रूट 2, ठीक है बेटे। तो सी की वैल्यू भी आ गई। हुण तुहानू आ सारी चीज़ां पता है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा हाँ जी ए स्क्वायर इज 9, एम इज 2, सी इज 4 रूट 2। तो इतने देखो प्लस दोनों पॉजिटिव लो तो एक आ जाना ऑटोमैटिकली, सी तुसी ऑलरेडी पॉजिटिव ले लिया, तो एक पॉइंट वास्ते दोनों पॉजिटिव है ना। तो जिहड़ा ऑलरेडी मैं समझाया थोड़े को पहले क्वाड्रेंट वाला जाना, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 बाय 4 रूट 2 आ हो गया ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ दोनों माइनस माइनस वाले ले लो, ठीक है। सो दैट इज इतने माइनस ते इतने माइनस, क्लियर। तो अगर सिंपलीफाई करिए तो थोड़े को आ गया 9 बाय 2 रूट 2 ते 1 बाय रूट 2 आ थोड़े को आ वाला पॉइंट दे देगा, और नेगेटिव नेगेटिव लेके आ थोड़े को थर्ड क्वाड्रेंट वाला। सो मल्टीपल ऑप्शन होना है, तो ए ते बी थोड़े आंसर आ गए, ठीक है। अगर स्लोप मान लो नैगेटिव होंगी इदा की तो ऑटोमैटिकली की होना सीगा कि थोड़ी एम की वैल्यू नैगेटिव आ जानी सी, है ना। तो अगर तुसी एक लेंदे प्लस प्लस वाला आ वाला तो एम ऑलरेडी नैगेटिव है, सी तो पॉजिटिव लिया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव है, तो जब आ नैगेटिव लेना सी नैगेटिव इंटू पॉजिटिव ऑटोमैटिकली माइनस प्लस एक आ जाना सी प्लस माइनस एक आ जाना सी, ठीक है। सो दिस इज द वे टू
कैलकुलेट। हाँ जी, अगे आह जेई एडवांस का क्वेश्चन सी 17 का कहता आ लाइन जी है y इक्वल टू 2x प्लस 1 इज टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला। हुण इहदे च तुहानूं एक पूरा टेंजेंट दे दित्ता है, बी स्क्वायर भी पता है, ए स्क्वायर नहीं पता। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दी साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये तो कोई वड्डी गल नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल दी साइड्स लेट्स से 3 नंबर अल्फा बीटा गामा कद हुंदे आ, ठीक है। जद मतलब तुसीं की करो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ते गामा स्क्वायर चैक कर लो, तो अगर किसी दो का सम तीजे के बराबर आ गया, कोई भी दो का सम तीजे के बराबर आ गया स्क्वायर करके, तो वी कैन से के दे आर दी साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, दे मस्ट सैटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो इसका मतलब आप सिर्फ तीनों साइड्स लभ लीए, बाकी तो यार चैक हो जाएगा। तो हुण उस साइड्स लभण लई सिर्फ तुहानूं ए अननोन आ, ए चाहिए, तो लेट अस गेट ए फ्रॉम दिस। नाउ अगेन टेंजेंट पता है, अगेन वी हैव डन दिस क्वेश्चन मैनी टाइम्स। टेंजेंट एम स्लोप का की होगा वाला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 16 और एम इथों तुहानूं पता 2 है, तो असी इक्वेट कर दो, तो ए स्क्वायर एम इज 2 2 स्क्वायर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 1। इथों तुहाडे को ए आ गया इज इक्वल टू 17, तो ए इज इक्वल टू रूट 17/2। तो हुण सिंपल जी गल, ए दी वैल्यू इत्थे रूट 17/2 प्लग करो, जिदा मतलब लैट्स चैक दिस। सो 2a कितना हो गया रूट 17, ऐदा ही कॉमा दूजा लेंथ 8 ते 1, स्क्वेयरिंग करो कितना आ गया 17 एंड 64 एंड 1। हुण इन्हां तिन्नां नंबरां चों किन्हां दो नूं जिहड़े छोटे वाले अगर ऐड करते हैं तो ये बराबर नहीं आ रहा, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, सो आ भी नहीं होगा, तो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, ये लाओ। हाँ जी, 2a कितना कैलकुलेट किया तुसीं, 2a कैलकुलेट किया रूट 17 ते 4 ते 1 है ना, आ 3 लेंथ हो गई ना साइड दियाँ, तो इसका स्क्वायर करो, बिकॉज अगर पाइथागोरस थ्योरम सैटिस्फाई होंगी है, लाइक फॉर एग्जांपल आ गई ए बी ते सी, सो स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज 17 16 ते 1 आ, ठीक है। इन्होंने दोनों ऐड करके आ रहा है, सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दीज सैटिस्फाई पाइथागोरस, दे कैन बी दी साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो कैन नॉट पूछा नहीं, बाकी चैक करके कैन नॉट वाले रख लो, ठीक है बेटे। सो मुख की गल की सी, तुहानूं हाइपरबोला का सारा टेंजेंट का कॉन्सैप्ट यूज करके उन्हें ए कढाउणा सी, बाकी तो खेडा ही है, ठीक है। ओके, लेट अस ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। इच कहंदा कि a line yeah, that is common tangent to this hyperbola and this circle, ठीक है। सो दोनों स्टैंडर्ड कोनिक्स आ, और मैं एक कंप्लीट लैक्चर लिया सी ਇਹਦੇ ਤੇ स्टैंडर्ड कोनिक्स ते कॉमन टेंजेंट का। तो जस्ट एक आइडिया फिर दिता मैं, लाइक सपोज करो इदा का कुछ मतलब कोई लाइन है जी जी दोनों टच करती है, तो तरीका की दसिया सी कि हुण आ हाइपरबोला जिहड़ा इनू लेट्स से y इक्वल टू mx, आ लाइन हमेशा इनू फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m टेंजेंट है, ठीक है। और लाइन क्योंकि सेम है तो मतलब स्लोप सेम हो गई, और यही लाइन m स्लोप दी सर्कल नू टेंजेंट, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर नू m स्लोप दे टेंजेंट दी इक्वेशन होंदी है पुत्तर y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सो आ लाइन जी है ए लच्छे ए पुत्तर ਇਹਦਾ कैपिटल ले लो सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये सर्कल नू टेंजेंट है ना, हुण क्योंकि लाइन सेम है तो ओबवियसली इन्हां दे 80 भी बराबर होने, तो सिंपल की हुंदा है कि दोनों दी सी इक्वेट कर दो, उतों तुहाडे को एम दी वैल्यू आ जाएगी जिहदे वास्ते वो दोनों कर्व नू कॉमन टेंजेंट होएगी, ठीक है। सो लेट्स सिंपली डू दैट, इन्हां दी सीज नू इक्वेट कर दिए। हाँ जी, पहले तक की अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हाइपरबोला दा है ना इक्वल टू सर्कल वास्ते, हाँ जी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो गल खत्म, इत्थों आपां स्क्वायर करके एम कढ लांगे, सो स्क्वायरिंग कर दिओ। सो 100 माइनस
3664 m स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 3600। तो स्लोप ਤੁਹਾਡੇ को आ गई m आ गया प्लस माइनस 10/8 या प्लस माइनस 5/4। सो दो पॉसिबल स्लोप्स होने हैं है ना, और ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਨਿਕਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੂਗੀ। ठीक है, सो m आ गई तो m वास्ते चेक कर लो, कहना जी इन्होंने चो किहड़े किहड़े ट्रू है। तो m कहता जी 4/5 वो भी गलत हो गया, m कहता -5/8 वो भी गलत हो गया। तो c चेक कर लेने हम आप। ठीक है, गल समझ आ गई बेटे। तो c कितना होगा, यू नो दैट c स्क्वायर इज इक्वल टू, हम भावें हाइपरबोला का लै लो भावें सर्कल का लै लो वैल्यू, क्योंकि c की तुसीं इक्वेट की थी सेम आएगी। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी हाइपरबोला का की सी a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो m स्क्वायर कितना पुत्र 100/64, that is 100/64 minus 64, that is c square. So let us see c square मैच करा के देखने केड़ा करदा है। So that is 64 इधर ले जाओ, 100 square minus 64 square by, so that is a minus b, फॉर्मूला लाता ना a square minus b square, a plus b and a minus b, that is 164 and 36/64, that is equal to c square। हाँ जी, सिंपलीफाई करो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ c ਦੀ वैल्यू चेक कर लो, आई लुक्स लाइक आ जाएगी क्योंकि डिनोमीनेटर प्रॉपर कैंसल नहीं होएगा। ठीक है, सो ये तरीका है कॉमन टेंजेंट का। दो स्टैंडर्ड कोनिक्स ਨੂੰ कॉमन टेंजेंट ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ m ਸਲੋਪ ਦੇ ਟੇਂजेंट ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੈਂਟਸ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੋਂ m ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, हाँ जी, आ कहता अगे द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला पैरेलल टू दिस लाइन, दैट इज प्रीटी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। पैरेलल टू दिस लाइन मतलब m आ गया थोड़े को, स्लोप 1 आ गए, और आ थोड़े को 20 ना डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर बाय 5 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। तो स्लोप पता है a स्क्वायर पता है, b स्क्वायर पता है, तो थोड़े को m स्लोप का टेंजेंट आ जाएगा mx प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, यू कैन चेक आउट द ऑप्शंस। अच्छा क्वेश्चन कहता पुत्र कंसिडर दी हाइपरबोला h, हाइपरबोला थोड़ा देता है एंड टेंजेंट एट द पॉइंट P। चलो पहला हाइपरबोला बना ली, हाइपरबोला है, फिर कहते इत्थे कोई पॉइंट P है 4,√6 ते P तेरा टेंजेंट है, लेट द टेंजेंट एट पॉइंट P मीट्स द x एक्सिस एट Q। सो आ टेंजेंट लेट्स से x एक्सिस ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ Q ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ठीक है, डायग्राम एक्यूरेट नहीं बनी, लेट मी जस्ट ड्रॉ अगेन। लेट्स से ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ Q ਤੇ, एंड द लेटेस्ट रेक्टम एट द पॉइंट R। लेटेस्ट रेक्टम की ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ फोकस चो ਜਿਹੜੀ लाइन जाती है ना एक्सिस दे परपेंडिकुलर, आ लाइन ये लेटेस्ट रेक्टम ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ R ਤੇ। ठीक है, कौन मिलता है टेंजेंट, लेट द टेंजेंट एट दिस पॉइंट मीट्स द x एक्सिस एट Q एंड द लेटेस्ट रेक्टम एट R। R ਦੇ कोऑर्डिनेट x1 y1 x1 पॉजिटिव, मतलब लेटेस्ट रेक्टम तो बेसिकली दो है ना बेटे, आ वाला भी हो सकता, उन्हें आ छड़ के कहता जी आ वाला। फिर कहता इफ f इज द फोकस ऑफ द हाइपरबोला विच इज नियरर टू द पॉइंट P। तो लाइक क्लियरली दो फोकस है, एक इधर होना एक इधर, तो फोकस ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ है ਜਿਹੜਾ P ਦੇ ਨੀਅਰ है। ठीक है, तो आ सिचुएशन है ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰੇ। और फिर कहता फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल आर क्यू ਤੇ F। तो इस ट्रायंगल ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। तो बेसिकली ਆਪਾਂ पॉइंट ਕੱਢਨੇ ਆ कोऑर्डिनेट्स, तो अगर आप पॉइंट साढ़े को आ गए तो हाफ बेस इंटू हाइट साडा एरिया आ जाएगा। तो लेट अस बिगिन, पहला तो टेंजेंट की इक्वेशन करते हैं इस पॉइंट पे, राइट। तो किसी पॉइंट पे टेंजेंट इज गिवन बाय t इक्वल टू 0। हाँ जी, लिखते हैं एक्स स्क्वायर की जगह x(1) 4x, वाई स्क्वायर की जगह y/1 -2 टाइम्स y1 है √6 कॉन्सटेंट ਨੂੰ कुछ नहीं कहना। आ थोड़े को इस लाइन की इक्वेशन आ गई, सिंपलीफाई कर लो, 2 ना डिवाइड कर दो, 2x माइनस √6y इक्वल टू 2। आ थोड़े को आ टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੇ x ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ Q ਤੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪੁੱਟ y0, ਇਹਨੂੰ 0 ਕਰ ਦੋ, ਹਨਾ। ਆ 0 ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2,
x इक्वल टू 1। सो q ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆ ਗਏ 1, 0। ठीक है एंड हुण आपां फोकस कर ली। फोकस कितना हुंदा पुत्तर a, 0। ठीक है और हाइपरबोला नूं सही तरीके नाल लिखिए 4 नाल डिवाइड कर दो। हुण आपां a b ते e कैलकुलेट करना। ठीक है बाय 2 तो a स्क्वायर इज 4, a is 2, e square is 1 plus b square by a square that is 3 by 2। सो e आ गया √3 बाय √2। तो फोकस आ जाऊगा ए थोड़ा 2 है तो दैट इज 2 टाइम्स √3 बाय √2 और आ कट के थोड़े को आ गया √6। सो फोकस आ गया √6, 0। ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ r ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੇਸ। तो बेस सिंपल कितना है √6 -1। ठीक है आ कोऑर्डिनेट 1 है, √6 है तो आ लेंथ आ गई √6 -1। आ हाइट चाहिए। हाइट इज नथिंग बट द y कोऑर्डिनेट ऑफ द r। ठीक है अगर r ਦਾ कोऑर्डिनेट है x1 y1 दिस इज y1 तो अपन y कोऑर्डिनेट चाहिए। x कोऑर्डिनेट ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है x √6 है ਇਹਦੇ ਚ √6 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ y ਕੱਢ ਲਓ है ना। तो आ टेंजेंट लाइन के अंदर x की वैल्यू √6 पुट करके ਤੁਹਾਡੇ को y कोऑर्डिनेट आ जाऊगा r ਦਾ। सो दैट इज 2 √6 y वाली टर्म इधर ले जाओ 2 इधर -2 इज इक्वल टू √6y 2 कॉमन √6 -1 बाय √6 ये ਤੁਹਾਡੇ को y आ गया। तो दिस इज सिंपल कैलकुलेशंस इनवॉल्वड है। बाकी हाइपरबोला ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ठीक है तो ਹੁਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ को ਇਹਦੀ हाइट आ गई ਇਹਦੀ that is twice √6 - 1 by √6। So now let us simply apply the area of triangles formula that is simply half base into height. If we know the base and height, base is this √6 - 1 and height is this number twice √6 - 1 by √6। ठीक है now we simply need to match। आ कटा गया हाँ जी आ दो नंबर सेम मल्टीप्लाई हुए तो स्क्वायर हो गया है ना √6 - 1 द होल स्क्वायर बाय हाँ जी a स्क्वायर plus b square minus 2ab and by √6 so out is 7 by √6 minus 2 √6 by √6 2 so 7 by √6 minus 2 ये ਤੁਹਾਡੇ को आंसर आ गया। ठीक है so that was this question। आगे चलते हैं। वो कहना था डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला सेंटर एट ओरिजिन। डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला एक हाइपरबोला है जिसका सेंटर ओरिजिन ते है and passing through this point is this। So directrix कितना है x is equal to 4 √5 by 5 4 by √5। So this is the directrix x equal to a by e and that is equal to 4 by √5। एक इक्वेशन आ गई a ਤੇ e and hyperbola ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is passing through the point what 4 ਇੱਥੇ given है 4 -2 √3। तो हाइपरबोला ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ और आ डायरेक्ट्रिक्स है। ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। तो एक इक्वेशन ਤੇ a e ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਹਨਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ a by e is equal to 4 by √5। ਸੈਕੰਡ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜੂਗੀ ਯਾਰ ਆ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਗਿਵਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਲਈ x² by a² minus y² by b² equal to 1 तो x ਤੇ y ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਇੱਥੇ ਪਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ that is 16 by a² and that is equal to 12 minus 12 by b² ਆ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ equal to 1 ਆ a ਤੇ b ਚ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ and ਤੀਜੀ traditionally we take eccentricity वाली e² is equal to 1 plus b² by a²। so ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਹਾਣੀ ਚੋਂ what we need to do simply need to get a equation in terms of e। ठीक है that's what we need to do। so let us do थोड़ी स्पेस बना ली। ओके नाउ इत्थों देखो प्रैक्टिकली इक्वेशन चाहिए है सेंट्रिसिटी ते a ते पता ही है e दी टर्म च है ना a दी वैल्यू ते आ वाली e दी टर्म इत्थे रख दांगे बच्चा b दी वैल्यू भी आप कट सकते हैं e दी टर्म च है ना क्यों क्योंकि
ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਏ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 16/a² -1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12/b²। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ b² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਔਰ a ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਸੈਂਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਟਰਮ 'ਚ। ਸੋ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਰਫੋਰ 12/b² ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 16/a² ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 16e²/5। ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ -1, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਰਫੋਰ 12/b² is equal to ਹਾਂਜੀ 5 - e²/e²। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ b² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਪੁੱਤਰ 12e²/5 - e²। ਸੋ b² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ e ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਥੇ a² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ e ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 16/5 e²। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਆ ਦੋਨੋਂ a² ਤੇ b² ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ e ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਜਸਟ ਡੂ ਦੈਟ, ਇੱਥੇ b² ਪਲੱਗ ਕਰੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ, ਔਰ ਇੱਥੇ a² ਪਲੱਗ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਗੈਟ ਦਾ ਆਂਸਰ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ 2011 ਐਡਵਾਂਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ P ਹੈ 6,3 on this hyperbola, and if 6,3 hyperbola ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ that intersects the x-axis at 9,0, then eccentricity is okay। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟੇ ਹੁਣੇ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੇਨ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਚੈੱਕ ਆਊਟ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੇ ਬੈਕ ਐਡਵਾਂਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ P ਤੇ Q, ਇੱਕ ਦਾ ਐਂਗਲ ਐਸੈਂਟਰਿਕ ਥੀਟਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਫਾਈ। ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਐਂਡ ਥੀਟਾ ਤੇ ਫਾਈ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ ਫਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ π/2 ਜਾਂ 90 ਡਿਗਰੀਜ਼। ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ P ਤੇ ਇੱਥੇ Q, P ਮੰਨ ਲਓ ਥੀਟਾ ਵਾਲਾ, Q ਮੰਨ ਲਓ ਫਾਈ ਵਾਲਾ। तो let HK be the point of intersection of normals at P and Q। तो P ਤੇ Q ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ H, K, then K is। तो अगर ਸਿੰਪਲ ਸੋਚੋ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, P ਤੇ Q ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। that's it, that's a whole thing we need to do। तो ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, P ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਦਾ ਸੈਂਟਰਿਕ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਇਜ਼ ਹਾਂਜੀ ax cos ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ by cot ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a² ਪਲੱਸ b²। ਇਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਫਾਈ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੀ ਆਊਗੀ, ax cos ਫਾਈ plus by cot phi equal to a² plus b²। and what is phi? Phi is 90 minus theta, ठीक है, प्लग कर दो 90 minus theta, 90 minus theta, ठीक है, that is save a step। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ simplify ਕਰ ਲਓ, let's simplify। ਹਾਂਜੀ what is cos 90 minus theta? sin theta, and cot 90 minus theta, tan theta। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ sin theta, ਆ ਜਾਏਗਾ tan theta। So this is sin of theta, this is tan of theta is equal to this। so ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਤਾਂ x ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ x ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ cos ਥੀਟਾ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਕਰ ਦੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟ ਅਸ ਡੂ ਦੈਟ, दोनों बनने let us multiply and subtract। हाँ जी, कितना होगा ax sin थीटा cos थीटा प्लस by, हाँ जी cot नो sin ना करांगे cos आ जाएगा, because cot is cos by sin into sin, simple cos थीटा आ गया, is equal to a² plus b² into sin थीटा।
एंड सैकेंड इक्वेशन नो cos थीटा मल्टीप्लाई कर दो, सो ax cos थीटा sin थीटा प्लस by, हाँ जी tan थीटा नो cos ना करांगे पुत्र, सिंपली sin थीटा आ जाऊगा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टाइम्स cos थीटा। नाउ लेट अस एलिमिनेट द x कोऑर्डिनेट बिकॉज वी नीड द y। ठीक है, हाँ जी आ कटिया गया, तो इथों की आ गया थोड़े को b कॉमन y कॉमन, सो cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू एच a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन, हाँ जी इतने आ जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। तो हाँ जी आ कट के कितना आ गया बेटे -1, तो y कोऑर्डिनेट आ गया माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय b विच इज नथिंग बट द k। ठीक है, सो डी ऑप्शन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गया। क्लियर? ओके अगे कहता द which of the following point lies on the locus of foot of perpendicular drawn upon any tangent to this ellipse from foci। ओके एलिप्स का क्वेश्चन आ गया, चलो एनीवेज ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। तो कहता जी फोकस तो किसी भी टेंजेंट ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਲੋਕਸ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਲੋਕਸ ਆਫ ਫੁੱਟ ਆਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫਰੋਮ ਫੋਕਸ ਟੂ ਐਨੀ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੈਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਾਈਜ਼ ਔਨ auxiliary सर्कल। सो वो हमेशा auxiliary सर्कल होता है, तो दैट लोकस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर 4 है, तो लोकस थोड़े को आ गया वाला राइट। तो कहता विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन दैट लोकस, सो यू कैन ईजली सी के केड़ा लाइक करदा केड़ा नहीं। इज दैट क्लियर? सो आ कर जूगा -1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 + 1 4। क्लियर? सो सिंपल बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी के लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर from any of the foci to any tangent is its auxiliary circle। Okay, फिर कहता है let P be any point of intersection of common tangent to this parabola। parabola है right handed, y square equal to 12x and this hyperbola x square by 1 minus y square by 8 equal to 1। तो ये एक hyperbola है, तो common tangent का क्वेश्चन है पुत्र। तो मान लो हाइपरबोला हो जाए कुछ, तो लेट दिस बी द कॉमन टेंजेंट राइट। तो दोनों स्टैंडर्ड कर्व्स है, ठीक है, तो दोनों स्टैंडर्ड कर्व है, कॉमन टेंजेंट की किवें करते हैं उन्होंने सी इक्वेट कर दो। तो हाइपरबोला दा सी कितना है पुत्र अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पैराबोला का कितना होता है ए बाई एम, बिकॉज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम इज द टेंजेंट टू दी पैराबोला। तो इतों थोड़े को एम आ जाऊगा। ठीक है, लेट अस नाउ सिंपली प्लग इन द वैल्यूज। सो हाँ जी ए स्क्वायर 1 है, एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 8 है, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ए, पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हाँ जी 4a इज 12, ए आ गया 3 बाय एम, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, सो थोड़े को आ गया एम स्क्वायर टाइम्स एम स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 9। क्लियर? तो ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ m ਸਕੁਆयर ਨੂੰ ਕੁਝ t ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ x ਮੰਨ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ m ਸਕੁਆयर ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9 ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, 9 - 8 1 और 9। तो दो ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। तो m ਸਕੁਆयर ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9 ਆ ਗਈ, तो m ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ +-3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆ ਲਾਈਨ ਹੈ +3 ਸਲੋਪ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ -3 ਸਲੋਪ ਦੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕਲੀ ਨੀਚੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਂਜੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਲੇ कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन कर ली, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, m थोड़ा आ गया +-3। ठीक है, a सीगा थोड़ा पुत्र 3, सो दिस इज 3/3 1, एक प्लस के नाल उपर वाली माइनस नीचे वाली। हुण अगे पढ़ते हैं, इफ s एंड s डैश बी द फोकाइज ऑफ हाइपरबोला where s lies on the positive x axis। तो हाइपरबोला एवरेज दो फोकस होने, एक पॉजिटिव साइड वाला एक नेगेटिव वाला, s पॉजिटिव वाला, दिस इज s डैश। देन p
divides S and S dash in which ratio? Now what is P? P is the point of intersection of the common tangents. Now clearly common tangent ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਬੇਟੇ? ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਆ +3 ਸਲੋਪ ਦਾ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ -3 ਸਲੋਪ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ A by M ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, +3 ਐਂਡ M is -3 तो ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ -1। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਮਿਲੂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਟ y0 x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -1/3, ਇਹਨੂੰ ਵੀ -1/3, ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ -1/3, 0 ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ P ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਕਸ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੱਢੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਈਟ। ਫੋਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਧਰ ਹੋਗਾ +AE, 0, ਇੱਧਰ -AE, 0। ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ A² ਪਤਾ ਹੈ, B² ਪਤਾ ਹੈ, E² ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, 1 + B²/A², E ਆ ਗਿਆ 3, A ਹੈ 1, तो आ गया 3, 0, आ गया -3, 0। जस्ट अप्लाई सेक्शन फार्मूला दैट इनू लैम्डा रेशो 1 लैके यू कैन कैलकुलेट द रेशो, करेक्ट। सो ये भी कॉमन टेंजेंट दे बेस ते क्वेश्चन सीगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता इफ दिस लाइन y = mx + 7√3 is normal to this hyperbola, then m is। ਜਦੋਂ m ਸਲੋਪ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਫਿਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। तो मैं ऑलरेडी डिस्कस किया सी एक बार कि आ लाइन नॉर्मल है सपोज करो, तो डू यू नो एनी नॉर्मल टू द हाइपरबोला? यस, नॉर्मल दी इक्वेशन की होंगी हाइपरबोला नू ax cos थीटा, ठीक है, प्लस by cot थीटा इक्वल टू a² + b²। ए लाइन हमेशा एट सम पॉइंट थीटा नॉर्मल होगी। हुण मान लो आ लाइन सेम है, ये भी मान लो सेम पॉइंट ते नॉर्मल है, तो मतलब की हो गया कि दोनों लाइना आइडेंटिकल है। तो इन्हां तो कंपेयर करके, क्योंकि अपनी मर्जी ना तो आ इक्वेशन लेना, तो थीटा असीं एलिमिनेट कर देंगे, तो उत्थों तुहाडे कोल m आ जाऊगा, ठीक है। लेट मी रिपीट, हुण आ लाइन फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा ये नॉर्मल है। सो सपोज करो आ नॉर्मल है, सो आड़ी साड़ी लाइन है, ये भी सेम पॉइंट ते नॉर्मल है। तो अगर ये दोनों सेम लाइनां नूं रिप्रजेंट करते हैं, इसका मतलब दीज टू लाइनस आर आइडेंटिकल, और इत्थों आपां साडे कोई रिलेशन आने उन्हां चों आपां थीटा नूं एलिमिनेट कर दांगे, उत्थों तुहाडे कोल m आ जाऊगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, a² is 24, a आ गया √24 एंड b² is 18, b आ गया √18, तो इत्थे आ गया √24 x cos थीटा प्लस √18 एंड y cot थीटा is equal to a² plus b², correct। so therefore that is equal to 42। सो ए आ गई, और ए लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, तो एवें करिए इधर एक्स वाई की टर्म एक पासे तो इनू एक पासे कर ली, तो mx माइनस वाई इक्वल टू -7√3। सो आ दोनों लाइना की है पुत्र सेम है, तो यह मतलब इन्हां दे कोफिशिएंट की रेशो सेम हो गया। जी, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, ਇਹਦਾ m ਆ, ਇਹਦਾ कितना पुत्र √24 cos थीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y, ਇਹਦੇ ਚ -1 है, और ਇਹਦੇ ਚ कितना है √18 cot थीटा, और हाँ जी -7√3/42। नाउ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1/cot ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ tan ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ tan थीटा आ गया, कितना आ गया माइनस कटे जाऊगा 7√3/18 यू गाइस कैन सिंपलीफाई, और पहले तीजे चों थोड़े को 1/cos इज सीकेंट आ जाऊगा, सीकेंट थीटा आ गया -7√3 एंड वेट ये चो थोड़े को हाँ आ गई टर्म माइनस से आ गया, तो √24 भी आऊगा, डिवाइड बाय 42 भी आऊगा, तो m भी आऊगा। क्लियर। तो हुण थीटा खत्म करिए, secant square थीटा minus tan square थीटा is 1, so we know that secant square theta
माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1। तो स्क्वायरिंग सबस्ट्रैक्टिंग करोगे क्लियरली सर एक अननोन है m, आ भी सारी वैल्यू नोन है, आ भी नोन है, तो इतों तुहाडे को m की वैल्यू आ जूगी जिहड़ी वो पुछदा है। ठीक है, सो जे इक्वेशन ना याद होगी तो दैट इज अ मेथड। Okay, let us do this last problem. Can the hyperbola passes through the point this and it has vertices at plus minus 6 comma 0। तो vertices पुत्र कितने होंगे a comma 0 ते minus a 0 ते a उन्हें 6 दे देता है। तो हाइपरबोला हो गया x square by 36 minus y square by b square equal to 1। एंड हाइपरबोला किहड़े पॉइंट चो पास करता पुत्र 10,16 चो। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ b ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾ ਦਿਓ। x 10 100 by 36 minus 256 by b square equal to 1। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ b ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਨੋਨ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਨੋਨ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ p। ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟੇ x minus x1 by x1 into a square which is 36 is equal to y minus y1 and by y1 into minus b square। और b square ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ कैलकुलेट करें ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ तो then you can match कि ਕਿਹੜਾ आंसर है। ठीक है, सो आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ प्रीवियस ईयर ਦੇ क्वेश्चन ਸਾਰੇ समझ आए होंगे और नटशेल च अगर ਤੁਸੀਂ देखा भी होगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के डू रिमेंबर द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट नॉर्मल एंड क्वेश्चन ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਉਹਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਪੁੱਤਰ।